गुड इवनिंग चिल्ड्रन। कल क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। उस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए मैंने आपको सॉल्यूशन भी सेंड किया था, पर एक बार उसको अच्छी तरह से बोर्ड पे समझते हैं, ठीक है। सो यस्टरडे इन क्वेश्चन नंबर 8 वी वेर गिवन 3 vertices A, B, C, as you can see A, B, C. Because AD is the median, so D is the midpoint, and because D is the midpoint, I will use midpoint formula for finding this. Suppose this is not known to us, and the midpoint formula will be x1 plus x2 upon 2. It will give us half. y1 plus y2, 0 plus 6 upon 2 will give us 3. In this way, we obtained coordinates of D. Now when we have to find the equation of AD, where 2 points are known to us, we will use double 2-point form like this. Y minus y1 is equal to, this is used when 2 points are known to us, as you can see. But before applying this formula, I will prefer to find this portion initially. तो बेटा हम लोग पहले इतना फाइंड आउट कर लेते हैं. As you can see, I have written the coordinates of A and D here, denoted by x1 y1 and x2 y2, and it becomes y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to 3 minus 4 upon half minus 3. Now here what I have done, I have written it as y2 minus y1 upon x2 minus x1. In the next step it will be 3 minus 4 is going to be minus 1, and to solve this I will take or assume 1 in the denominator, which will be 1 ones are 1 minus 2 threes are 6 upon 2 ones are 2, ठीक, which will be minus 1 upon 1 minus 6 minus 5 upon 2. देखो ये minus 1 और फ्रैक्शन में ये जो डिनोमिनेटर का सेपरेटर है, नीचे 1 minus 6 minus 5 और नीचे है बेटा 2. नेक्स्ट स्टेप में दो चीजें होगी, एक माइनस माइनस कैंसिल, और फ्रैक्शन जब नीचे होता है तो उसका डिनोमिनेटर ऊपर जाता है. तो ये 2 चला गया ऊपर, 5 रहा नीचे, माइनस माइनस कैंसिल, and this way we obtain the value of y2 minus y1 upon x2 minus x1. So proceed for, therefore equation of AD is y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, which gives us y minus y1 is 4, y2 minus, and all that combination is ready made, 2 by 5 x minus x1. घर में भी बड़ा भोजन बनाते वक्त आपकी मम्मा कुछ चीजें पहले बना के रख देती है ना, और अगर आपको बुरा लगता हो तो आप भी बना के रखते हो. You used to help your mother. I'm not talking about girls only, I'm talking about boys also. Boys and girls both are equally expected to help their parents, especially mother, in her work, in cooking also. In fact, I don't, but it is a good habit. So, for cooking this recipe, I have made this portion readily available initially. इसको हमने रख दिया है यहाँ पे. ये आगे चलेगा बेटा, 5 आ गया इधर, 5 into y minus 4 equal to 2 into x minus 3. अब कैलकुलेशन सिंपल है, 5y minus 20 equal to 2x minus 6, which becomes, ऐसा करते 2x को अपनी जगह पे रखते, minus 6 को भी यहीं पे रखते, 5y को इधर बुला लेते, minus 5y, minus 20 को इधर बुला लेते, plus 20, और इधर 5y उधर गया, 20 उधर गया. आजकल इधर कोई नहीं रहता, 0.
which becomes 2x minus 5y, इनका एडिशन minus 6 plus 20 is positive 14 is equal to 0 is your required final answer. ठीक है बेटा? तो if needed आप इसको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट करेंगे और फिर हम लोग अभी तुरंत जो नेक्स्ट पोर्शन था ईडी वो भी फाइंड आउट करते हैं बेटा. Okay, good. Now in the next part where we have to find the equation of ED and coordinates of D are known to us, but we don't know the coordinates of E. I will write midpoint E xy is E x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. This is what we are doing. How to calculate E, which you know better. तो ये बेटा E बन रहा है आपका x1 plus x2 because E is the midpoint of AB. तो हम AB पे फोकस करेंगे और ये हमने 10th में पढ़ा है. 10th result. Welcome the result. 3 plus 2 upon 2. तो बेटा y1 plus y2 4 plus 0 y1 plus y2 4 plus 0 upon 2, which means our E is now 3 plus 2 5 by 2. और बेटा ये हो गया आपका 4 plus 0 4 by 2 मतलब 2. ये मिल गया हमको E. अगर E मिल ही गया है तो लगे हाथ में बाजू में D भी लिख देता हूँ. D जो हमें पहले से ही मालूम है हाफ एंड 3. ठीक. और अब हम जहां हमें ED का इक्वेशन फाइंड आउट करना है बेटा, when we have to find the equation of line ED, I will need the coordinates of D and I will also need the coordinates of E, which are 5 by 2 and 2. तो हमने इसको बोल दिया x1 y1, इसको बोल दिया बेटा x2 y2 और आगे हम लोग वो थोड़ा सा जैसे कुकिंग वाला बात किया था ना, वैसे इसको फाइंड आउट करके रखते y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to y2 minus y1 3 minus 2 upon x2 minus x1 half minus 5 by 2. आराम से चलते बिल्कुल बढ़िया समझेगा. is equal to चिंता नहीं 3 minus 2 1 upon अब नीचे वो तो बढ़िया हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है ना हम उसको एक ही बार लिखते हैं और इनको लिखते बेटा 1 minus 5 लिख दिया. जो आगे चला 1 अपॉन कैंसिल करना पड़ेगा, इतनी जगह पे वो अच्छी तरह से नहीं लिखा जा सकता. मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा इसको. हम इसको लिखते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन ये हमारा मेन फ्रैक्शन लाइन अपॉन 1 minus 5 minus 4 upon 2 minus 4 upon 2 जो बनता है इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस और ये कैंसिलेशन करिएगा तो इतना आता है. अर्थात y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 का वैल्यू आपके पास आ गया है -1 by 2. ठीक. इसको लेके हम फिर से इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं. इस बार हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है बेटा ED का सेम फार्मूला रहेगा. क्योंकि मैं आराम से सॉल्व कर सकूं तो मुझे इसको मिटाना है. आप समझ गए हो. आपको पॉज करना है इफ नीडेड. अगर आपने नहीं किया हो तो इसको नोट करना है. मैं आगे बढ़ने वाला हूं. ये हमारा y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 का वैल्यू है और हमने लिखा इक्वेशन ऑफ ED इज y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. और आगे बढ़ते हैं तो इसको यदि मैंने x1 y1 और इसको यदि मैंने x2 y2 लिया है, आप चाहो तो इसको भी x1 y1 ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. तो वैल्यूज पुट अप करते रहे बेटा तो y minus y1
और y1 लिया है हमने 2। इसका रेडीमेड वैल्यू देखिए आप, यहाँ पे है -1/2 x माइनस x1 और x1 का वैल्यू है 5/2। ये फ्रैक्शन यहाँ पे ना होता तो बेहतर होता, पर होगा तो होगा, हम ये देख लेंगे। बोले ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम है, इसके पहले भी आया, आगे भी आएंगे, देख लीजिए। जब तक 2 को आप इधर बुला लीजिए, ब्रैकेट करना पड़ेगा। अब यहां बचा बेटा आपका -1 और ब्रैकेट के अंदर देखिए चल क्या रहा है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और ये चला बेटा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x -5/2। ठीक, चलो 2 × y, 2y -4 इक्वल टू -1 × 2x - 5/2। इस 2 को हम लोग इधर बुला लेते हैं, पहले से ही यहाँ पे 2y -4 है, 2 को जो इधर बुलाया हमने, तो ये चला बेटा इधर आपका -2x - 5, which now becomes 4y -8 equal to -2x plus 5, which now becomes -2x जो इधर आ गया तो 2x plus 4y -8 आप भी आ जाए अंदर, -5 is equal to 0, which becomes 2x plus 4y -13 is equal to 0 is the required equation of ED. In this way हमने इन दोनों को देखा। तो बेटा इतना नोट करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे और नया टॉपिक पढ़ेंगे आज का, ठीक है बेटा। चलो डू इट, एनी डिफिकल्टी ऑलवेज आस्क मी।